Good morning, student. Today we'll discuss chapter 2, water. We have already completed chapter 1, chapter 3 and chapter 4. Hope you have written question answers in your science copy. Now we start chapter 2, water. You know that about 3/4 of Earth's surface is covered with water, yet during summer you would have read in the newspaper about the water crisis. Have you ever thought about the reason for water crisis despite the abundance of water on the earth? 3/4 हमारी अर्थ का सरफेस जो है यानी 75% वाटर है, उसके बावजूद हम देखते हैं कि समर में न्यूज़पेपर में आता है कि यहाँ पानी नहीं मिल रहा है, वहाँ पानी की कमी है। तो यदि 75% वाटर अर्थ पे है तो पानी की कमी क्यों होती है? चलिए पर इसको हम समझते हैं। वाटर अ नेचुरल रिसोर्स। ऑफ द टोटल वाटर अवेलेबल ऑन अर्थ 97% इज फाउंड इन ओशन, 2% as ice on the peaks and the poles, and the remaining 1% in rivers, lakes, ponds, and beneath the earth's surface. We use this underground water by digging wells. Water is also present in the atmosphere in the form of water vapor, mist, and clouds. वाटर एक नेचुरल रिसोर्स है जो एक हमें नेचर ने दिया हुआ वरदान है, ऐसे हम बोल सकते हैं। बट जो पानी पृथ्वी पे है उसमें से 97% जो है वो समुंदर में है, 2% है जो कि आइस के फॉर्म में है, और 1% जो है वही हमारे काम का है, यानी वो रिवर, लेक, पॉन्ड्स एंड बीनीथ द अर्थ सरफेस। One percent is only useful for us, and we also use underground water. Underground water ज़मीन के नीचे का पानी जो हम वेल वगैरह डिग करके यूज़ करते हैं। Many substances like common salt and other minerals are present in ocean water in large quantity. Due to these, the water becomes salty or saline. It cannot be used for drinking, bathing, washing clothes, or irrigation. Water present as iceberg is pure, though it cannot be used easily. Of the total water available on earth, the quantity of water which can be used by human beings is very small. This is equivalent to 1 milliliter of usable water out of every 10 liters available. That is 0.01%. You can now perhaps see that the quantity of water available for our use is really small and why water is so important. So we should use water carefully and prevent its wastage. पानी में बहुत सारी चीज़ें होती है, उसमें से है एक है कॉमन सॉल्ट एंड अदर मिनरल्स। कॉमन सॉल्ट यानी नमक होने की वजह से ओशन का पानी हम लोग क्या बोलते हैं, सलाइन होता है या साल्टी होता है, जो कि ड्रिंकिंग, बाथिंग या वॉशिंग क्लॉथ या इरिगेशन पर्पस के लिए यूज़ किया नहीं जा सकता। और जो आइस के फॉर्म में वाटर है वो भी हम आसानी से उसको पिघलाना पड़ेगा, और वो सब हम आसानी से यूज़ नहीं कर सकते। फिर जो पानी अवेलेबल है अर्थ पे उसमें से सिर्फ कितना पानी हम यूज़ कर रहे हैं, 1 मिलीलीटर आउट ऑफ 10 लीटर अवेलेबल। मतलब यदि 10 लीटर पानी है तो उसमें से सिर्फ 1 मिलीलीटर ही पानी जो है वो यूजेबल है या उसको हम यूज़ कर सकते हैं। इसलिए पानी की दिक्कत हमें गर्मी में होती है। Importance of water for living. Water is an essential component of all living being. Almost 70% of human body weight is water. A healthy person needs about 2 to 3 liters of water for drinking daily. This is necessary for various processes of body for which water acts as a medium.
In the stomach, water is necessary for digestion, absorption of food, and for circulation of the digested food in the body. Along with water, unwanted waste material are thrown out of the body in the form of urine and sweat. The temperature of our body is also controlled by sweating. Thus, we should drink plenty of water so that all the processes of our body run smoothly. Water is as important for plant as it is for animals. वाटर एक क्या है, लिविंग बीइंग का असेंशियल कंपोनेंट है और हमारी बॉडी में 70% क्या होता है, पानी होता है। और जो हेल्दी पर्सन है उसको पूरे दिन भर में 2 से 3 लीटर पानी पीना चाहिए, क्योंकि हमारी बहुत सारी बॉडी की प्रोसेसेस है, जैसे डाइजेशन है, एब्सॉर्प्शन है, सर्कुलेशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड है या फिर एक्सक्रीशन है, ये सारे के लिए हमें पानी की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए हमें 2 से 3 लीटर पानी डेली पीना बहुत ज़रूरी है। टेम्परेचर, इसके अलावा हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी क्या होता है, जब हमें पसीना आता है तब वो कंट्रोल हो जाता है। इसलिए हमें पानी जो है बहुत ज़्यादा पीना चाहिए, जिसकी वजह से ये बॉडी की प्रोसेसेस जो है वो क्या हो जाएगी, स्मूथली रन होगी और हम तंदुरुस्त रहेंगे, हेल्दी रहेंगे। Now what are the here it is given a table names of the animals and approximate percentage of water by weight. एलिफेंट में कितना परसेंट रहता है पानी का, प्लांट में, ब्रेड में, मिल्क में, टमाटो में, देन ऑरेंज में, पोटैटो में। तो इसमें से सबसे ज़्यादा जो है मिल्क में क्या रहता है, पानी रहता है। Now one activity is given to you, green gram seed, bowl, water, cloth and soil. ग्रीन ग्राम सीड का मतलब क्या होता है, उड़द मूंग दाल। टेक सम ग्रीन ग्राम सीड इन अ बॉल एंड सोक देम इन वाटर फॉर फ्यू आवर। नाउ टेक दिस वेट सीड, tie them in a cloth. In the same way, take some similar dry मूंग सीड and tie them in a cloth. आपको क्या करना है कि ग्रीन ग्राम यानी छिलके वाली मूंग दाल लेनी है, जिसको पानी में कुछ घंटे के लिए भिगाना है। उसके बाद पानी में से निकाल के उसको एक कपड़े में बांधना है और एक दूसरा कपड़ा लेना है जिसमें सूखी मूंग दाल को आप बांधोगे। कीप द क्लॉथ विच हैज़ वेट सीड्स मॉइस्ट बाय स्प्रिंकलिंग वाटर ऑन इट एट रेगुलर इंटरवल। और फिर 3-4 दिन के बाद आप देखोगे कि जिसको आप सीड को भिगाए थे और उसको कपड़े में बांधे थे, वो क्या हो जाएगी, स्प्राउट हो जाएगी। Now divide the germinated seed into 2 parts. Sow them at separate places A and B in dry soil. Keep watering place A daily and do not put water over place B. After 2 to 3 days, you will see that seeds in the place A have grown. Though the seeds in the place B had germinated, yet they did not grow further after being put in the soil. फिर आपको वो जर्मिनेशन हुई सीड है उसको 2 अलग जगह पे क्या करना है, बोना है। और फिर एक यानी ए प्लेस को आप पानी डालोगे रोज और बी को वैसे ही छोड़ दोगे। क्या हो जाएगा कि दोनों तो जर्मिनेट होगी बट अच्छे से जर्मिनेट नहीं हो पाएगी, वो रहेगी आपकी सीड बी। ऐसे क्यों हुआ? वाटर इज़ नेसेसरी फॉर जर्मिनेशन एंड ग्रोथ इन प्लांट। मतलब हमने उसको पानी नहीं दिया, इसलिए वो अच्छे से जर्मिनेट नहीं हुई और उसकी ग्रोथ अच्छे से नहीं हुई। इसका मतलब है वाटर क्या है, प्लांट की जर्मिनेशन और ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। यू ऑल्सो नो दैट रूट्स ऑफ द प्लांट एब्सॉर्ब मिनरल डिसॉल्व इन वाटर एंड ट्रांसपोर्ट देम टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट। हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि पेड़ की या प्लांट की जो जड़ होती है वो मिट्टी में से मिनरल्स और पानी को एब्सॉर्ब करती है और स्टेम के थ्रू ट्रांसपोर्ट करती है वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट, यानी प्लांट के बाकी हिस्सों में वो ट्रांसपोर्ट होती है। ग्रीन प्लांट यूज सनलाइट टू मेक फूड फ्रॉम वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो है वो ग्रीन प्लांट में हमने देखने को मिलती है। उस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा प्लांट अपना खाना खुद पकाते हैं। उसके लिए उनको ज़रूरी है सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड।
Water is also a habitat for plant and animal living in river, pond and seas. Most of the time animal use oxygen dissolved in water for respiration and water plant use carbon dioxide dissolved in water for photosynthesis. वाटर क्या है? हैबिटेट है, रहने की जगह है। बहुत सारे प्लांट और एनिमल हम देखते हैं कि रिवर में, पॉन्ड में या सी में हमें देखने को मिलते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम एनिमल यूज़ ऑक्सीजन, और बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो पानी में डिजॉल्व ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं रेस्पिरेशन के लिए। और प्लांट जो है ग्रीन कलर के, जैसे कि अलगी यानी काई, जो कि हमें बारिश में देखने को मिलती है, वो काई ग्रीन कलर की होती है। वो क्या है? एक प्लांट है, एक्वाटिक प्लांट या पानी में दिखने वाला प्लांट। वो क्या करता है? पानी से कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करता है। किसके लिए? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए। नाउ टेबल इज गिवन एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म एग्जाम्पल। एक्वाटिक प्लांट, पानी में दिखने वाले प्लांट, आपको उसके नाम लिखने हैं। लोटस है, इसके अलावा वाटर लिली आप लिखोगे इसमें, और उसके बाद थर्ड एग्जाम्पल आप लिखोगे अलगी। एक्वाटिक एनिमल यानी पानी में रहने वाले एनिमल है, फिश है, क्रोकोडाइल है, आप लिख सकोगे फ्रॉग है, स्नेक है। एक्वाटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, पानी में दिखने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अमीबा, पैरामेशियम, यूग्लेना। यू राइट जस्ट 3 नेम्स। वाई कांट ह्यूमन बींग यूज़ वाटर अवेलेबल इन द ओशन फॉर देयर डेली एक्टिविटीज़? हम समुंदर का पानी यूज़ क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि समुंदर का पानी कैसा है? साल्टी है, या फिर हम उसको बोलते हैं सलाइन वाटर है। नाउ वाई इज़ वाटर इसेंशियल फॉर ह्यूमन बॉडी? ह्यूमन बॉडी के लिए पानी क्यों इसेंशियल है? इसका आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। नाउ आई एम गोइंग टू टिक मार्क द आंसर एंड यू राइट इट इन योर कॉपी। हेल्दी पर्सन से स्टार्ट होगा, स्वेटिंग तक। क्लियर? दिस इज आंसर नंबर 2. Now why ocean water is not useful? Because many substances like it cannot be used for drinking, loss or irrigation. Up to this answer number 1. Clear? Now what will happen if the plant in a pot is not watered? Explain giving reason. Answer is given here. Water is necessary for germination and growth in plant, and green plant. What will happen if you are not giving water to that plant? That plant will क्या हो जाएगा? पॉट में का प्लांट, गमले का प्लांट मर जाएगा। हाउ इज़ वाटर इम्पॉर्टेंट फॉर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म? एक्वेटिक एनिमल के लिए इसका आंसर आप लिखोगे यहाँ से फोटोसिंथेसिस तक। आंसर नंबर 4. And this is answer number 3. In this way you write down question answers in your science copy. Clear? Thank you.